Hello, this is the lecture number 5 for the chapter probability for the class 11th, and the last lecture we have done up to question number 7 of your NCERT book, exercise 16.3. Now in question number 8 is the easy question where 3 coins are tossed. So what is the sample space for the 3 coins? You know it: head, 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 tail, head, tail, head, head, tail, 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 head, tail, tail, head, then tail had tail and tail had head. So sample space iska, it is equal to 8. Total possible outcome here is 8. In the first part you have to find the probability that it will have 3 heads. So even we have 3 heads. So 3 heads की event की value कितनी है यहाँ पर? We have only how much? Only 1. So therefore the number of events for E1 is how much? 1. The probability of this event E1 is 1 upon 8. That is, we have only 1. In the second part, let us call the event be E2, 2 heads. So 2 heads ki you write the events. So 2 heads ki events isme chatiye: head, head, tail, head, tail, head, then tail, head, head. This, and this. Only we have how many events? We have only 3 events. So probability of this event 2 is 3 upon 8. So this is the probability that it will have 2 heads. Now in the third part, what it says that at least 2 head. Let us call it 3. E3 at least 2 heads. तो कम से कम 2 heads का मतलब 2 या 3 heads ही हो सकते हैं. तो 2 heads वाली तो ये हैं ही, और 3 heads वाली हमारे पास ये इवेंट हो जाएंगे. तो हाउ मेनी इवेंट्स वी हैव? एट लीस्ट 2 heads. तो 2 ये इसमें 3 हैं. 2 2 2 सॉरी 2 2 एंड 2. तो वी हैव ओनली हाउ मेनी इवेंट्स? 4. तो कार्डिनल नंबर ऑफ जो ई हो गया, हाउ मच? वी हैव लेट इट इक्वल टू 3, 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट E3 इज 4 upon 8, दैट इज 1 upon 2. सो दिस द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव एट लीस्ट 2 heads. Now in the next part, that is the fourth part, what it says that let us call the event be E4. In the fourth part, at most 2 heads. So be very careful, at most 2 heads. ज़्यादा से ज़्यादा 2 heads means जिसमें at most आता है उसमें 0 include होता है. तो 0 head, 1 head, 2 head, 0 head, 1 head and 2 heads. तो एक ये वाला नहीं आएगा बस. head, tail, head, एक ये नहीं आएगा बस. head, tail, tail, टेल 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 आएगा. एट मोस्ट 2 में 0 हेड वाले भी इवेंट्स लेते हैं हम. 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड ओनली. ठीक है. तो हाउ मेनी इवेंट्स वी हैव? वी हैव हाउ मेनी इवेंट्स दिस? वी हैव 7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट 2 हेड इज 7 upon 8. 7 upon 8. तो एट मोस्ट में बी वेरी केयरफुल, 0 इंक्लूड होता है. तो इन दी फिफ्थ पार्ट, नो हेड्स, एक भी हेड ना हो. तो एक भी हेड ना, केवल ये वाली इवेंट है, दैट इज ऑल टेल्स. तो हाउ मेनी इवेंट्स वी हैव इन दिस E5? ओनली 1. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1 upon 8, दैट इज 1 upon 8. नाउ इन द सिक्स्थ पार्ट, 3 tails, same is let us call E6 3 tails. So for the 3 tails we have only 1 event, and the number of event E6 is how much? 1. So probability of E6 is NE upon NS. In the second part, 7th part, we have exactly 2 tails. Let us E7 exactly 2 tails. Exactly 2 tails. तो exactly 2 tails. तो exactly 2 tails इसमें आ रहा है. इसमें head, tail, tail. Then we have tail, tail, head. Then we have tail, head, tail. Only 3 events we have. So number of events E7 is 3. The probability of this event E7 is 3 upon 8. So like this you can write the probability of all the events. The remaining part you do yourself. Remaining part you do yourself. But at most में ध्यान रखना है कि 0 include नहीं होता है. तो in question number 9, if 2 upon 11 is the probability of the event A. Probability of the event A, then it is given as 2 upon 11. You have to find the probability of not A. तो not A क्या होता है? 1 minus probability of A होता है. तो ना आने की probability 2 upon 11, that is 11 minus 2, that is 9 upon 11. Question number 9. In question number 10, there is a word assassination, SSANI
SASSASSINATION. So you have to find the first part, the probability that it will be a vowel. तो let E1 be the vowels. तो इसमें vowels कौन कौन से हैं? It is A, O. How many events we have in this? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 events we have. The probability that it will be a vowel is 6 upon how many elements in the this word? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो सैम्पल स्पेस यहाँ पर हमारे पास 13 था. सेकेंड पार्ट में कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट में कौन कौन सी इवेंट है? इनको वावल को छोड़ करके. तो इट इज SSSSNTN. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इवेंट्स E2 हमारे पास हो गया हाउ मच? 7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस E2 इज 7 अपॉन हाउ मच? सैम्पल स्पेस इसका 13 था. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 था ये. Now in question number 11, what it says that a lottery, a person chooses 6 different natural number at a random from 1 to 20. 1 से लेकर 20 तक कोई से भी 6 different natural number he has to choose, and if these 6 number match with the 6 number already fixed by the lottery, so you have to what is the probability that he win the prize. Now if is the event that the prize, तो प्राइस तो केवल एक ही इवेंट पर होगा. 1 से लेकर 20 में 6 नंबर्स यू हैव टू सेलेक्ट. सो जो इसमें आपका इवेंट है वो 1 है. प्राइज जीतने की जो इवेंट केवल 1 है. नाउ व्हाट इज द सैम्पल स्पेस? सैम्पल स्पेस ये कह रहा है कोई भी एलिमेंट आपको 6 नंबर्स डिफरेंट नंबर्स लेने हैं, 6 डिफरेंट नंबर. तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा पहला नंबर कोई भी 20 में से एक हो सकता है, दूसरा नेक्स्ट 19 में से कोई, नेक्स्ट 18 में से कोई, नेक्स्ट 17 में से कोई, नेक्स्ट 16 में से कोई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नेक्स्ट 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी दैट वी कैन टेक एनी 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 20. पहला नंबर 20 में से कोई एक हो सकता है, दूसरा नंबर रिमेनिंग 90 में से कोई एक हो सकता है. दीज आर दी पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1 अपॉन NS. जो भी सैम्पल स्पेस है मल्टीप्लाई करके ऊपर आएगा. Now in question number 12 you have to find whether this data is possible or not. Probability of A दे रखा है 0.5, probability of B हमें दे रखा है 0.7 and probability of A intersection B हमें दे रखा है 0.6. Now A intersection B is always less than equal to probability of A. हमेशा A या B के probability से इक्वल या उससे स्मॉलर होगा, ग्रेटर कभी नहीं हो सकता. तो इस केस में ये जो है इससे ग्रेटर आ रहा है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो देयरफॉर दिस डाटा इज नॉट पॉसिबल. ये डाटा पॉसिबल नहीं है फर्स्ट पार्ट वाला. इन द सेकेंड पार्ट इट इज गिवन दैट the probability of A is given as 0.5, the probability of B is given as 0.4 and the probability of A union B is given as 0.8. और हमेशा जो यूनियन की probability होती है ग्रेटर और इक्वल टू probability of A और probability of B. तो इस केस में ये दोनों से ग्रेटर है तो यस दिस डाटा इज पॉसिबल. ये डाटा हमारा पॉसिबल है. In question number 13, you have to use this formula. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ये वाला formula use होगा in all the parts. जैसे first part में हमें probability of A given है 1/3, probability of given है 1/5, probability of intersection given है 1/15 और probability of A union B हमें पता करना है. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. तो this is the first part. You can do the remaining part by using this formula. In question number 14, what it says that the probability of A is given as, probability of A हमें given है 3/5, probability of B हमें given है 1/5. You have to find the probability of A और B. मतलब आपको probability of A union B पता करना है और हमें given है कि A and B are
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो फॉर म्यूचुअली यूनियन वाला फॉर्मूला लगाइए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास 3/5 1/5 माइनस 0, तो 4/5 आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। Thus, in the next question, that is the question number 15, what it says that in 15 the probability of E is given, it is equal to 1/4, probability of F is given as 1/2 and the probability of E and F, तो मतलब इंटरसेक्शन हमें गिवन है कितना, 1/8। पहले पार्ट में आपको probability of A और B निकालना, मतलब यूनियन निकालना है। तो probability of A, E और F निकालना है, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 ये आ गया। सेकंड पार्ट में बी वेरी केयरफुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट एंड एफ नॉट निकालना है। ठीक है, ये आपने डी मॉर्गन्स लॉ करा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ, इंटरसेक्शन है तो होल करने पर, और जब ये कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ आ जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे तो ये नॉट का होता है। सो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ, ये ध्यान रखिएगा आप। यस, इन 16 व्हाट यू हैव टू फाइंड, इन क्वेश्चन नंबर 16 ई एंड एफ सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें गिवन है ई नॉट और एफ नॉट हमें गिवन है, दैट इज 0.25। हमें ये पता लगाना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या। तो देखो यहाँ पर भी दोबारा डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, इंटरसेक्शन करके होल हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ वी कैन राइट। और यहाँ पर आप माइनस में से ये 1 करके माइनस करके आप इसमें ये कॉम्प्लीमेंट हटा सकते हैं, और इसमें आपके पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.75। नाउ बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ई एंड एफ are not mutually exclusive event, क्योंकि mutually exclusive events के लिए इंटरसेक्शन की probability should be equal to 0 because intersection empty होता है। तो ये स्टेप ध्यान रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ वी हैव यूज्ड। ठीक, now in 17 what it says that in 17 A and B are events such that probability of A given है आपको, probability of A given है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हमें गिवन है 0.16। आपको ए नॉट निकालना है, निकाल लोगे। ए नॉट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकालना है, बी नॉट भी निकल जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 में से इसको माइनस करके। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, जो कि हमें फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ऑल वैल्यूज वी नो इट, इसमें कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यूनियन वाला फॉर्मूला लग रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट वी हैव, इन ए क्लास 11 ऑफ स्कूल 40% स्टडी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, एम मान लिया, 40% गिवन है। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, तो बायोलॉजी कितना है, 30% पढ़ते हैं, एंड 10% स्टडी बोथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी हमें 10% दे रखा है, तो 10/100। तो इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम ए क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मतलब आपको और पता करना है, और का मतलब आपका यूनियन हो गया, और यूनियन का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी, सारी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, लाइक दिस, तो हो जाएगा 70 माइनस दिस कितना 100, तो 60% आइदर स्टडी मैथ्स और बायोलॉजी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ 19 व्हाट इट सेज दैट in an entrance test the graded on a base of 2 examination, the probability of randomly chosen student
पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन, तो लेट फर्स्ट एग्जामिनेशन को मैंने E1 मान लिया, कितना दे रखा है 0.8 दे रखा है. द प्रोबेबिलिटी दैट आर पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन लेट अस कॉल E2 0.7 गिवन है. द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज पासिंग एट लीस्ट वन, तो एट लीस्ट वन का मैंने मतलब बताया था आपको यूनियन होता है. एट लीस्ट वन मतलब 0.95, एट लीस्ट वन का मतलब यूनियन, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यू हैव टू फाइंड देयर इंटरसेक्शन, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है. तो यूनियन वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2. तो हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19 है. एट लीस्ट वन मीन्स और यूनियन. 20 in question number 20 what it says that the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi, इंग्लिश और हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर मीन्स ना तो इंग्लिश में ना हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.1. द प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश से एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है पास होने की 0.75, ये हमें गिवन है. तो आपको ये पता लगाना है इंग्लिश में पास होने की. तो यहाँ से थोड़ा सा यूनियन निकल के आएगा डी मॉर्गन्स लॉ लगा करके. नाइदर का मतलब है ना इंग्लिश में पास हुआ ना हिंदी में, तो E यूनियन H का होल कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी इज इक्वल टू 0.1, तो 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी, तो 0.9 आ गया इंग्लिश और हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी. अब इसमें यूनियन का फॉर्मूला लगाइए, E यूनियन H प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंग्लिश का इंटरसेक्शन. तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी. तो ये फाइंड करना है, तो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा लेंथी सा देखिएगा. इन ए क्लास ऑफ 60 द 30 स्टूडेंट ऑप्टेड NCC. तो एनसीसी को मैंने C मान लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑप्ट करने की हाउ मच 30/60 है. प्रोबेबिलिटी द 32 ऑप्टेड NSS, तो NSS को ऑप्ट करने की प्रोबेबिलिटी 32/60 है. एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, इनके दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है हाउ मच 24 ने ऑप्ट करा है अपॉन 60. तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई. तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एप्टेड एनसीसी या फिर NSS, यूनियन पता करना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन S, दोनों ही हमें पता है. ऑल यू कैन फाइंड इट. सेकेंड पार्ट द स्टूडेंट ऑप्टेड नाइदर NCC नॉर, ना ही NCC नॉर NSS, ये पता करना है. तो हमें पता है डी मॉर्गन्स लॉ से होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ C यूनियन S करके होल आएगा और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C यूनियन S. तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ही लिया है. द स्टूडेंट ऑप्टेड, थर्ड पार्ट ऑप्टेड NSS लेकिन NCC ऑप्ट ना करे. मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने, ध्यान दीजिएगा, ये सपोज मुझे NCC है SS है, तो उसको ऑप्टेड NSS, ये तो ऑप्ट करा है लेकिन NCC ऑप्ट नहीं करा. तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन माइनस कर देना है. SSS तो हो, NSS लेकिन ये ना हो, तो इसमें से ये कॉमन वाला माइनस कर दो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएगा. S तो उसने, NSS तो ऑप्ट करा है, NCC ऑप्ट नहीं करा है. सो दिस इज द थर्ड पार्ट्स. तो कैलकुलेशन यू कैन डू इट. ओके, वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.